দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ দিনটোৰ এটা চৰ্চিত বিষয়, জেহাদী কাৰ্যকলাপ বিৰোধী অভিযান ইতিমধ্যেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰক্ষী বিভাগে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোগীঘোপাত পুৱাৰ ভাগতেই কেইবাখনো বুলডোজাৰ উপস্থিত হৈছে আৰু জেহাদী কাৰ্যকলাপ চলি থকা এখন মাদ্ৰাছা ইতিমধ্যে চুৰমাৰ কৰি পেলাইছে। এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে আজিৰ দিনটোত চৰ্চা লাভ কৰি থকাৰ মাজতেই সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে এইবাৰ চৰকাৰক তুলা ধুনা দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল। বুলডোজাৰ নীতি যদিহে চলাবলৈ মন আছে সেইবোৰ উত্তৰ প্ৰদেশত চলাওক, অসমত বুলডোজাৰ নীতি বন্ধ কৰক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই হুংকাৰ মৌলানা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম মিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, বুলডোজাৰ নীতি বন্ধ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বুলডোজাৰেৰে মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া সন্দৰ্ভত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। কিয় মাদ্ৰাছাৰ নাম শুনিব নোখোজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মুকলিকৈ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। মাদ্ৰাছাত বুলডোজাৰ চলোৱাক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ কৰিলে আজমলে। তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মাদ্ৰাছা চুৰমাৰ কৰি পেলোৱাৰ সন্দৰ্ভত। মাদ্ৰাছাৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলোৱা বন্ধ কৰক বুলি এক প্ৰকাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। মাদ্ৰাছাই দেশপ্ৰেমৰ কথা শিকায় বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আজমলে। মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়া সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে সৰব প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাদ্ৰাছাই সৎ পথে শিক্ষাৰ্থীসকলক চলিবলৈ শিকায়, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাদ্ৰাছাৰ ওপৰত বুলডোজাৰৰ কোব কিয়, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু মাদ্ৰাছাই শিকায় হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ, এই মন্তব্য মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত কিয় লৈছে তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেকৈ মাদ্ৰাছা ভাঙি পেলোৱাটো কোনো পধ্যেই আইনসন্মত নহয় বুলি এক প্ৰকাৰ দাবী উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে টিঙিৰি তোলা হৈ উঠিল বদৰুদ্দিন আজমল। যোগীঘোপাৰ কাবাইতাৰীত আজি পুৱাৰ ভাগতে এখন মাদ্ৰাছা ভাঙি পেলোৱা হ'ল। এজন দুজন অপৰাধী পালে সকলো মাদ্ৰাছা ভাঙি পেলোৱাটো উচিত নহয় বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। এটকা দুটকা দান কৰি নিৰ্মাণ কৰা মাদ্ৰাছা কিয় একেদিনতে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে চৰকাৰে, তাক লৈও সৰব প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পাছতে এতিয়া চৰকাৰক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। এনে বুলডোজাৰ নীতি উত্তৰ প্ৰদেশত চলাওক, অসমত বুলডোজাৰ নীতিৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলডোজাৰ নীতি অসমত নচলিব বুলি এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। এজন দুজন জেহাদীৰ বাবে শ শ মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। যদি জেহাদী ধৰা পৰিছে তাক ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে, কিন্তু তাকে কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মাদ্ৰাছা বুলডোজাৰ লগাই ভাঙি চুৰমাৰ কৰি দিয়াৰ যুক্তি ক'ত? বিজেপিক দৰকাৰ হৈছে মুছলমানৰ ভোট, গতিকে ভীতিগ্ৰস্ততা দেখুৱাই ভয় ভাবুকিৰে মুছলমানৰ ভোট সংগ্ৰহ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে বিজেপি চৰকাৰে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। ভয়ভীত দেখুৱাই মুছলমানৰ পৰা ভোট আদায়ৰ চেষ্টা চলাইছে বিজেপিয়ে, যাৰ ফলশ্ৰুতিতেই মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া বুলডোজাৰ নীতি আৰম্ভ হৈছে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যোগীঘোপাত এটা জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰু সেই জেহাদীয়ে এখন মাদ্ৰাছাত শিক্ষক ৰূপত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। যোগীঘোপাৰ কাবাইতাৰীৰ মাদ্ৰাছাখনত পুৱাৰ ভাগতেই প্ৰশাসনে যুদ্ধংদেহী ৰূপ লৈ 8খনতকৈ অধিক বুলডোজাৰ লগাই মাদ্ৰাছাখন ভাঙি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। এক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেহু গঢ়ি তোলা হ'ল। অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ আশংকা কৰিয়ে হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী বাহিনী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হ'ল। আৰক্ষী বাহিনী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ নিৰাপত্তা বেহুৰ মাজত 8খনতকৈ অধিক বুলডোজাৰেৰে ভাঙি পেলালে মাদ্ৰাছা আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতেই সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তীক্ষ্ণ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। অসম চৰকাৰক তুলা ধুনা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাদ্ৰাছা ভাঙি দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সমগ্ৰ ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৈতে ৰিজাইছে। বুলডোজাৰ নীতি উত্তৰ প্ৰদেশত চলাওক, অসমত ইয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য আছে, এই মুহূৰ্তত মন্তব্য পোনে পোনে শুনাই লৈছোঁ। हमारा ये कहना है कि मदरसों के अंदर भाईचारगी, अमन व अमान
प्यार मोहब्बत, देश की मोहब्बत पढ़ाया जाता है। ईमानदारी से, सच्चाई से रहना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहना, घरों में, बाजारों में, हर जगह ईमानदारी से रहना मदरसों में सिखाया जाता है। अभी स्कूल है, हजारों स्कूल हैं आसाम में, लाखों में भी हो सकता है। अगर उनमें 1, 2, 3 में कोई इंडिविजुअल कोई आदमी गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो सरकार उसको पकड़े, उसको जो करना है। मैंने पहले कहा कि कानून के हिसाब से उसको जो सजा देना है सरकार उसको दे, हमें उसमें कहने की कोई बात नहीं है। 1 मिनट प्लीज। तो जो मदरसों को गिराने की बात है, ये हमारा कहना है इस मामले में सरकार से कि आप लोग इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। ये मदरसे उस पूरे इलाके में बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जाइए जिन मदरसों इलाकों में मदरसे नहीं है, वहाँ के बच्चे आवारा मिलेंगे आपको। मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, कुछ तो पढ़े कम से कम। कोई भी मजहब ये सब बुराई का काम नहीं सिखाता। अगर 1, 2, 3 मदरसे में आपको मिला है तो वो 3 को उठाइए, उनके साथ में 10 को उठाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोषी ठहरते हैं, उनको जो सजा देना है दे दीजिए, जो सजा देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मदरसे को आप पब्लिक प्रॉपर्टी है। बहुत से मदरसे 30 साल में, 20 साल में, 40 साल में 1-1 रुपया दे के लोगों ने, धान दे के, चावल दे के ये मदरसे बने हैं। तो इसको एक दिन में आप तोड़ देंगे, ये तो नाइंसाफी की बात है। उसके खिलाफ इंक्वायरी कराइए। अगर पूरा मदरसा उसके अंदर इन्वॉल्व है, जरूर उसको भी तोड़ दीजिए, हमें उससे कहना नहीं है। लेकिन इन्वॉल्वमेंट मिले तो सही। अगर कोई भी इसमें गलत आदमी पकड़ गया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट उसके साथ जो करना चाहे करे। लेकिन ये बुलडोजर हुकूमत, ये जो है योगी हुकूमत में चलेगा, आसाम में नहीं चलेगा। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर साहब से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पॉलिसी को बंद करिए, बुलडोजर हुकूमत को बंद करिए। ये आपका काम नहीं है, आप कानून के हिसाब से होने दीजिए। कोई भी होता है, अगर कोई इदारा, कोई स्कूल पूरा का पूरा मालूम है उसी में इन्वॉल्व है, आपके इंक्वायरी में आता है, आप करिए, उसको बुलडोजर भी चला दीजिए, हमें उसमें भी कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस तरीके से मदरसों को गिराना ये जुल्म है, नाइंसाफी है। इसके खिलाफ खाली मुसलमान नहीं, मैं आप लोगों के माध्यम से नॉन मुस्लिम सेकुलर भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप लोग खुल के मैदान में आइए। ये एजुकेशन के इदारे हैं, ये चोर डकैत और वो जिहादी बनाने के रास्ते नहीं है। अगर कोई एक आदमी पूरे तालाब में एक मछली गलत फंसता है, अब उस मछली को निकालिए, उसको मार डालिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तो नहीं है कि पूरा का पूरा मदरसा और पूरा का पूरा इलाका ही कल अब जाएंगे बुलडोजर चलाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नाइंसाफी है, ये इमीडिएट बंद होना चाहिए। गैर कानूनी भी अगर कुछ है, उसका कानून यही है कि बुलडोजर लगा के तोड़ दो। हाँ, ये उच्छेद तो नहीं है ना। गैर कानूनी अगर किसी ने बनाया है उसका भी कानून है, कैसे सरकार को क्या प्रोसीजर करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, फिर उसके बाद ये करना चाहिए, फिर नोटिस देना चाहिए। ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मदरसों के खिलाफ जिद है, मदरसे का नाम नहीं सुनना चाहते। गलत आदमी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इसकी दिखाइए, ईमानदारी की दिखाइए। गलत आदमी है, 1 है, 2 है, 10 है, आप पकड़िए, ले जाइए, उसके बाद इंक्वायरी कमीशन बिठाइए, उनको जहां से जहां तक सजा देना है, हमको उसमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन एक आदमी के मिलने की वजह से उस पूरे इलाके के बच्चों को अच्छे काम से आप रोक देंगे, एजुकेशन से। वैसे ही आसाम सरकार स्कूल बना नहीं पा रही है। स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो दर्जा नहीं है, दर्जा है तो दर्जा नहीं है। अभी जो रिपोर्ट आया है, इसका रिजल्ट जो आया, वो क्या बताता है आसाम में एजुकेशन का हाल कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आप उनको सिखाइए ना। इनमें कोई भी गलत आदमी मिलता पकड़ो, अरेस्ट हिम, जो आपका कानून बोलता है वो करिए, हमें इसमें कुछ नहीं। लेकिन बुलडोजर चलाना बंद करिए, वो योगी जी का काम है। योगी जी ने भी कम कर दिया ना, अभी तो उनके ऊपर पूरी दुनिया से इतनी लानत पड़ी है कि उन्होंने भी कम कर दिया है। बुलडोजर का वो स्पीड जो आज 2 महीने 3 महीने पहले था, आज नहीं है। तो इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा साहब भी, उनका भी अपने माहौल में एक अच्छा नाम है, वो इस चीज को रोके। ऐसा तो नहीं है कि उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, उनकी सरकार के खिलाफ कुछ लोग साजिश में लग गए कि इनको इतना भड़का दो, इनका भड़का दो कि उसके बाद इनकी हुकूमत गड़बड़ हो जाए। ये भी हो सकता है। मुझे एक मिनट, मैंने जो बोलना था बोल दिया। जितना लंबा बोलेंगे उतनी बात निकलेगी। मैंने साफ बोल दिया, कहीं भी आपको कोई आदमी
या कोई इदारा आपको गलत काम में अगर उसके अंदर मिलता है, इन्वॉल्व मिलता है, आप उसको पकड़िए, ले जाइए, जेल दीजिए, फांसी दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बुलडोजर राज बंद करिए, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर करना है तो आप कानून के तरीके से जाइए। इलीगल है तो इलीगल का आज कोर्ट में जब जाएंगे, हाई कोर्ट अगर कोई चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, धज्जियां उड़ा देंगे लोग। बड़ी बड़ी सरकारों को धज्जियां उड़ा दिया लोगों ने। ऐसे ऐसे वकील हमारे यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए वो बात वहां तक नहीं जाना चाहिए। हम नहीं चाहते, आपस में बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। बुलडोजर बंद करो, सबसे पहली बात। अच्छा, अगर सरकार के साथ जी एक अगर सरकार ये बंद नहीं करेंगे तो क्या यूडीएफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ? उसके लिए हम सोचेंगे, सरकारी के सिद्धांत के उसके लिए हम सोचेंगे। सरकार के सिद्धांत में जरूरत पड़ेगी तो जाना भी पड़ेगा जी, कहीं भी जाना पड़ेगा। ये 100% इसके अंदर राजनीति इन्वॉल्व है। 100% इसलिए इन्वॉल्व है। कल मैंने देखा, आज तक में पूरा एक रिपोर्ट 1 घंटे का आया कि 2024 के लिए बीजेपी सरकार कम से कम 10% मुसलमानों का वोट उनको चाहिए। अगर वो 10% मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है तो बीजेपी सरकार वापस नहीं आती है। तो बीजेपी सरकार हर वो कौशल करेगी जिससे मुसलमान डर के और बीजेपी के गोद में चला जाए, उनको वोट दे दे। हमारा